السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ورب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. ایک دم وقت کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ آج کا کلاس ہے کیا کہ جتنا بھی ہم نے 10-15 دن جو بھی پڑھائی کیا ہم نے جو 10-15 کلاسز ہم نے کیا انشاءاللہ آج اس کا مکمل ایک مجموعی شکل میں آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پریکٹس کریں گے کہ ہم نے جو پڑھا آخر اس کا استعمال کہاں کریں گے. یعنی بندہ نے پڑھائی لکھائی تو کر لیا, جاب بھی کرنا ضروری ہے نا, تو پھر پڑھائی لکھائی بیکار تو اس کے لیے آج ہم پڑھیں گے کہ سب سے پہلے تھوڑا پیچھے ریویژن کر لیتے کہ ہم نے جو مرکبات پڑھے تھے, مرکب کے اندر ہم نے دو پارٹس کیے تھے. مرکب کے اندر ہم نے دو پارٹس یہ کیے تھے کہ ایک مرکب جو جس میں بات مکمل نہ ہو اس نے ہم نے کہا مرکب ناقص, اور ایک مرکب وہ تھا جس پہ بات مکمل ہو جائے جس کو ہم نے کہا مرکب تام, جس کو ہم جملہ بھی کہتے ہیں. جملہ کے ہم نے دو پارٹس کیے تھے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. کیونکہ ہم نے ابھی شروع سے ابھی اسم پڑھتے ہوئے آ رہے تو جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا تھا, اور جملہ اسمیہ ہم نے اسے کہا تھا جس کی شروعات کسی اسم کے ساتھ ہو. اچھا, ہم نے جو جملہ اسمیہ کے دو پارٹ کیے تھے وہ تھا ایک مبتدا اور ایک تھا خبر. یہ جب دو ملا تو آپس میں ملنے کا بعد کیا یہ بنا, یہ جملہ بن گیا, یہ جملہ بن گیا تھا. یہ تھا ہمارا مرکب تام. اس مرکب تام کو آج ہم نے پڑھنا ہے مکمل طریقے پہ. آج ہم نے مکمل جملہ اسمیہ ہم کو پڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے بات اس کے علاوہ بھی ہم نے چار مرکبات جو پڑھے تھے, ہم نے چار مرکبے تھے ناقصہ جو پڑھے تھے ہم نے. جو سب سے پہلا تھا ہمارا وہ کیا تھا, مرکب اشاری. جو تھا اس میں اشارہ اور مشار الیہ. مشار الیہ کا مجموعہ یاد آ رہا ہے نا کچھ. ایک مثال ہم نے لیا تھا حاذ القلم, جس میں بات مکمل نہیں ہوئی تھی. دوسرا مرکب ہم نے پڑھا تھا مرکب توصیفی. اور جو مجموعہ تھا موصوف اور صفت کا, موصوف پلس صفت کا مجموعہ تھا. موصوف اور صفت کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے اس لیے پہلے کہا تھا کہ جو ہم نے چار مرکبات پڑھے تھے اس کو اچھے سے مشق کر کے آئیے گا. موصوف کسے کہتے ہیں میں آج آپ سب سے پوچھوں گا, اور صفت بھی پوچھوں گا, ظاہر سی بات ہے. تیسرا ہم نے پڑھا تھا مرکب اضافی, جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن مجید اور احادیث رسول کے اندر کثرت سے, عربی کے اندر کثرت سے استعمال ہونے والا جو مرکب تھا وہ مرکب اضافی تھا. جو مجموعہ تھا مضاف اور مضاف الیہ کا. مضاف اور مضاف الیہ کا. چوتھا مرکب جو ہم نے پڑھا تھا اور وہ کون تھا, مرکب جاری. اور یہ تھا جار اور مجرور کا اور مجرور کا مجموعہ. یہ ہم نے مکمل پڑھا تھا. یہ ہمارا تو جملہ اسمیہ ہمارے پاس تھا, ٹھیک ہے, جس میں بات مکمل ہو جاتی تھی. مکمل ہونے پہ مبتدا اور خبر مل کر جب بنتا تھا, اور اس کے اپنے رولز تھے, اس کے بھی اپنے رولز تھے, اس کے بھی اپنے رولز, اس کے اپنے رولز, اس کے اپنے رولز تھے. سارا رولز ہمارے ذہن میں ہونا ضروری ہے. جتنے بھی ہم نے قاعدہ پڑھا, قوانین پڑھے, ان تمام چیزوں کو ذہن میں بیٹھا کر کے اچھے طریقے سے تمام کا تمام توجہ آپ کو بورڈ پہ رہنا ہوگا. جو بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہے اس کو سائڈ رکھیں, نہیں تو ہم نے جو پڑھا ہمارا سارا ختم ہو جائے گا. جو ہم نے اتنے دن کا محنت کیا, اگر آج ہم نے محنت سے نہیں سوچا, آج اگر ہم نے کیا بولتے اس کو, اگر ہم نے من لگا کر آج ہمارا کلاس نہیں ہوا تو ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا سب کا سب بیکار ہو جائے گا.
तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह आज तमाम का तमाम जहन यहीं पे होना चाहिए, कोई भी अगर कोई काम कर रहा हो उसको छोड़ दे, 1 घंटा के लिए आप यहाँ पे मशरूफ हो जाए। सबके अपने अपने रूल्स थे, एक बार रूल्स को याद कर लेते हैं। क्या रूल्स था? मुब्तदा और खबर के 3 रूल्स थे, मैंने बताया था कि मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होता है और खबर भी हमेशा हालत रफा में होता है। हालत रफा, नसब, जर, ये क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुब्तदा हालत रफा और खबर हालत रफा में होता है, और मुब्तदा हमेशा मारिफा और खबर नकरा आएगा जहां तक मुमकिन हो। जहां तक मुमकिन हो हम खबर को नकरा लेकर आएंगे, लेकिन जहां मुमकिन ना हो वहां पे हमको मजबूरन उसको मारिफा लाना होगा। तीसरा जो रूल था कि मुब्तदा और खबर आपस में अदद और जिन्स के एतबार से आपस में मुताबिकत करेगा। अगर मुब्तदा वाहिद हुआ तो खबर भी वाहिद होगा, मुब्तदा अगर मुज़क्कर हुआ तो खबर भी मुज़क्कर, और मुअन्नस हुआ तो ये भी मुअन्नस, ये अगर मुसन्ना या जमा हुआ तो ये भी मुसन्ना या जमा होगा। मुरक्कब इशारी में हमने पढ़ा था कि मुरक्कब इशारी वाज़ेह सबको जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो, ऐसा मुरक्कब नाक़िस जिसमें इसमें इशारा इस्तेमाल हो। तो इसमें इशारा में हमने देखा था कि मुरक्कब इशारी, इसमें इशारा और मुशारुल इलैह आपस में चारों क्या नाम उसका इसम के जो 4 पहलू है, पहला जिन्स, अदद, वुसअत और एराब के एतबार, यानी चारों एतबार से आपस में मुताबिकत करेंगे। ये मुरक्कब तौसीफी भी एकदम सिंपल था कि जो सिफत था मौसूफ को फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? जिन्स के इसम के चारों एतबार से। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर, अगर ये वाहिद तो ये भी वाहिद, अगर ये मारिफा तो ये भी मारिफा, अगर ये नकरा तो ये भी नकरा, यानी सिफत फॉलो करेगा मौसूफ को। मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने देखा मुज़ाफ का एक अपना रूल था और मुज़ाफ इलैह का अपना रूल था। मुज़ाफ का रूल 3 था, एक्चुअली 2 था, 3 बना दिया था हमने, 2 रूल था। एक तो ये इस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, दूसरा कि अलिफ लाम के बगैर आएगा और तनवीन नहीं आएगी, और एक ये था कि जब कभी भी मुज़ाफ मुसन्ना आएगा तो उसका नून जो है वो नून ड्रॉप हो जाएगा। ये जमा सालिम मुज़क्कर अगर आएगा तो नून उसका ड्रॉप हो जाएगा, और मुदाफ इलैह हमेशा हालत जर में होता है। इसका अपना एक रूल था। मुरक्कब जारी का नॉर्मली कोई रूल नहीं था, जार और मजरूर का बस एक ही रूल था कि जब भी हरफ जर लगेगा तो मजरूर जो है जिस इस्म के साथ हरफ जर लग जाए वो हालत जर में चला जाएगा। अब इन तमाम बात को जहन में रखेंगे, और अब हम क्या करेंगे, ये तमाम 4 मुरक्कबात को मुब्तदा और खबर की जगह पर रख करके हम जुमला बनाएंगे मुकम्मल। हमने जो शुरू में पढ़ा था ज़ैदुन सालिहुन, वो एक एक मुफरद पे था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इन चारों मुरक्कबात को मुब्तदा या खबर की जगह पर हम रखेंगे और हम देखेंगे कि कौन सा मुरक्कब कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, कहां मुब्तदा बनकर आ रहा है, कहां खबर बनकर आ रहा है। अब हम अरबी के अंदर अपना मुकम्मल जुमला इन मुरक्कबात को इस्तेमाल करके मुकम्मल जुमला हम बनाएंगे। यहां तक किसी को कोई सवाल? अब सारा तवज्जो बोर्ड पे, सारा तवज्जो बोर्ड की तरफ। मैं सिंपल से एक जुमला लिखता हूं मुफरद के अंदर, यानी मुफरद यानी सिंगल वर्ड में 2 जुमला लिख रहा हूं मैं, 2 वर्ड लिख रहा हूं, और वो है उर्दू। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उर्दू से अरबी के अंदर ट्रांसलेट करेंगे, और फिर जब उर्दू से अरबी के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारा जो बेस होगा ना वो मजबूत हो जाएगा, और बेस जब हमारा मजबूत हो जाएगा तो इन फ्यूचर हमारा फ्लोर भी मजबूत होना शुरू होगा। तो बेहतर ये है कि पहले हम उर्दू से अरबी के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे, फिर हम अरबी से उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन करेंगे जब हमें मुकदमा समझ में आ जाएगा, यानी जब हम बेसिक समझ में आ जाएगा। तो मैं एक सिंपल वर्ड लिख रहा हूं और वो ये है ज़ैद नेक है। ज़ैद नेक है। आपको पता है कि अरबी आती नहीं है की कोई अरबी नहीं है का मफहूम निकालने के लिए हमने पहले बता दिया कि मुब्तदा और खबर जब रूल अप्लाई होगा मुब्तदा और खबर का, तो वो रूल अप्लाई होने के बाद ऑटोमेटिकली वो है का मफहूम पैदा हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगी ज़ैद से इसम की शुरुआत हो रही है, जुमला इसमिया की शुरुआत हो रही थी, ज़ैद जो हमारा मुब्तदा हो गया, तो हमने सिंपल से बना दिया ज़ैद को हालत, अब आपको पता है कि मुब्तदा क्या करना है, हालत रफा के अंदर रखना है, तो हमने ज़ैद को हालत रफा के अंदर बैठा दिया ज़ैदुन।
और नेक आपको पता चलिए कि जैद के बारे में हमें खबर मिल रहा है कि वो नेक है, तो नेक को अरबी में सालेह कहते हैं, तो हमने सालेह को बना दिया। आपको समझ में आया? जैद मारिफा है, मारिफा के 5 अकसाम पढ़े थे, 5 अकसाम में से सबसे पहला ये इसमें अलम है, तो जैद ऑलरेडी मारिफा आ रहा हमारे पास, बिना कोई झिझक हमने जैदुन कर दिया। खबर जो हमारा होता है वो नकरा होता है, तो हमने सालेह को नकरा बना के लेकर आए, तो हमारे पास आ गया जैदुन सालेहुन। हमारे पास जुमला इसमें हमारा तैयार है मुफरद मुफरद पर, जैदुन सालेहुन। यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर होने के बाद अब हम थोड़ा क्या करेंगे, अब जुमला को बढ़ाएंगे। पहले हमारा मुफरद मुफरद था, अब हम थोड़ा जुमला को बढ़ाएंगे और आपका दिमाग यहाँ पे काम करना शुरू करना चाहिए। अब हमारे पास जो था जैद तो नेक है, हमारे पास समझ में आ गया। अब जो जैद है वह ना के बारे में थोड़ा और खबर फैलाते हैं हम। जैद नेक आदमी है, जैद नेक आदमी है। तक हमने पढ़ा था मुफरद मुफरद। अब हमारे पास 3 वर्ड आ गया, जैद भी आ गया, नेक भी आ गया और आदमी भी आ गया। है कि वैसे भी अरबी नहीं है के बारे में भूल जाए। है का मफहूम निकालने के लिए मुब्तदा और खबर का रूल अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ज़हन दो रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि जैद के बारे में कोई खबर मिल रहा है और वो खबर मिल रहा है कि वो नेक आदमी है, तो जैद मुब्तदा बन गया ना। जैद हमारा, जिसका माइक ऑन है वो माइक एक बार ऑफ कर लें, ऑप्शन है वहां पे माइक और ऑडियो वीडियो दोनों का ऑफ कर लें। जैद हमारा मुब्तदा बन गया, तो हमने जैद को सिंपल सा मुब्तदा का रूल अप्लाई करके मारिफा और हालत रफा में डाल दिया, ज़ैदुन। अब आपका माइंड दौड़ना चाहिए कि जो जैद के बारे में जो खबर मिल रहा है वो खबर क्या है, वो कि नेक आदमी है। अब मुझे आप बताएं कि ये जो नेक आदमी है, हमने कोई मुरक्कब में पढ़ा था कि इसके बारे में कौन सा मुरक्कब फिट हो रही है? कौन बताएगा? नेक आदमी, ये कौन सा मुरक्कब पढ़ा था हमने? माइक ऑन करें मरियम जी आप, आवाज आ रही मेरी? हाँ, मुरक्कब तौसीफी में पढ़े थे, माशाल्लाह। तो आपको समझ में आ रहा है कि नेक आदमी मुरक्कब तौसीफ है ना, आदमी के बारे में सिफत, और सिफत और मौसूफ, यानी देख रहे हैं हम नेक जो हमारा सिफत है और आदमी मौसूफ है, यानी जिसके बारे में इसकी सिफत बयान की जा रही। तो हमने क्या किया था, अरबी के अंदर तीर चला जाता है, यानी पहले मौसूफ आता है और बाद में सिफत आता है। तो हमने जैदुन को मारिफा लेकर आ गए। अब हमारा जो खबर है ना वो मुरक्कब तौसीफी आ गया, टोटल एक मुरक्कब नाकिसा आ गया। अब हमने मुरक्कब नाकिसा का रूल अप्लाई कर देना है, यानी आदमी हमारा रजुलुन, और मैंने बताया था कि मौसूफ को फॉलो कौन करता, सिफत, तो नेक के लिए साले, और रजुलुन चूंकि नकरा है तो हमारा साले भी नकरा हो जाएगा। तो हमारे पास जुमला आ गया जैदुन रजुलुन सालेहुन, हमारा जुमला मुकम्मल आ गया। ये हुआ हमारा मुब्तदा। मुब्तदा जो बगैर कोई मुरक्कब नाकिसा के आया, और जो हमारा जो खबर था वो मुरक्कब तौसीफी बनकर आ गया। अब समझ में आया आपको कि हमने जो मुरक्कबात पढ़े थे क्यों पढ़े थे, हमने जो इतने क्लास, हमने जो अपना इतना टाइम हमने जो दिया था अपना, वो क्यों दिया था, आपको क्लियर समझ में आया? तो मुब्तदा जो था हमारा नॉर्मल एक मुफरद आया, लेकिन जो हमारा खबर आया वो मुरक्कब तौसीफी बनकर के हमारे सामने खबर में आ गया। लेकिन अब अगर आपको मैंने बताया था कि मुरक्कब तौसीफी हमने 2 तरीके से पढ़ा था, एक तो मारिफा लेकर आए थे और एक नकरा। चूंकि हमें पता है कि जो खबर है वो नकरा आता है, इसलिए हम बगैर अलिफ लाम के लेकर आए। और नकरा इसलिए कि रजुलुन सालेहुन में ना तो अलिफ लाम है, ना ये इसमें अलम है, ना ये इशारा है, ना ये इसमें मौसूल है, ना ही ये इसमें ज़मीर है। ठीक है, तो हमने मुकम्मल कर लिया जैदुन रजुलुन सालेहुन। अब अगर मैं कहूं, एक और आगे बढ़ता हूं मैं, एक जुमला और लेता हूं मैं कि नेक आदमी के बारे में कुछ खबर देते हैं। अब नेक आदमी जो हमारा, नेक आदमी
बैठा है, नेक आदमी बैठा है। अब आप खुद सोचें, अब यहां पर आपको उर्दू का थोड़ा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें कि नेक सिर्फ मुब्तदा बन सकता है, सिर्फ नेक के बारे में कोई तो खबर नहीं आ सकता ना। अगर मैं कहूं नेक मुब्तदा बना दिया और खबर आदमी बैठा हुआ है तो कुछ मैच नहीं हो रहा। हाँ, नेक आदमी मुब्तदा बन सकता है, नेक आदमी मुब्तदा बन सकता है, नेक आदमी के बारे में कोई खबर आ रहा है कि वो बैठा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि नेक आदमी को हमने मुब्तदा बना दिया और नेक आदमी मुब्तदा बनकर आया, यानी नेक आदमी मुरक्कब तौसीफी हुआ। मुरक्कब तौसीफी होने की वजह से मुब्तदा में आ रहा है और मुब्तदा क्या होता है, हमेशा मारिफा होता है। तो हमने अब यहाँ से रजुलुन सालिहुन को मारिफा बनाएंगे। तो मारिफा बनाने के लिए अलिफ लाम लगा दिया, अर रजुलुन था, अर रजुलु हो गया, इसको फॉलो करेगा, मौसूफ को फॉलो करेगा सिफत, तो अस्सालिह आ जाएगा, अस्सालिहु। और बैठा हुआ के लिए हमने पढ़ा था जालिसुन, खबर लेकर आएंगे हम नकरा, तो हमने हो गया अर्रजुलु सालिहुन, अर्रजुलु सालिहुन जालिसुन। तो हमने देखा मारिफा हमारा आ गया मुब्तदा, ये हमारा मुब्तदा था, और अब मुब्तदा मुरक्कब तौसीफी बनकर आ गया। अब मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बनकर आया तो हमने मारिफा लेकर आया था, जब मुरक्कब तौसीफी खबर बनकर आ रहा था तो हमने इसे नकरा लेकर आए। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई सवाल? यहां तक किसी को कोई सवाल? मैं अगर बताऊं आपको, मुब्तदा हमेशा, हमने मुब्तदा और खबर के बारे में रूल क्या पढ़ा था? मुब्तदा क्या होता है, हमेशा 3 रूल पढ़ा था मैंने, मेरे रूल अप्लाई करे। मुब्तदा हमेशा हालत रफा में होगा और खबर भी हमेशा हालत रफा में होगा। मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा और खबर जहां तक पॉसिबिलिटी है हम नकरा लेकर आएंगे। तो मुब्तदा में जब ये हमारा मुरक्कब तौसीफी आ रहा है तो हम मुब्तदा को हालत रफा में तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन साथ में मारिफा भी तो लेकर आना ना बनाकर। तो हमने मारिफा बनाया ना अलिफ लाम लगा करके, उसको मुअर्रब बिल लाम लगा करके हमने इसको मारिफा बनाया और मुब्तदा के लिए सूटेबल कर दिया, यानी मुब्तदा बना दिया हमने। लेकिन अगर मैं रजुलुन सालिहुन बनाता तो क्या मुब्तदा का रूल अप्लाई होता है यहाँ पर? फिर तो वो खबर, वो तो फिर मुब्तदा हमेशा क्या बोलते हैं, मुब्तदा तो फिर आपका नकरा हो जाता, फिर जबकि नकरा होना ही चाहिए, क्योंकि मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा, मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा। तो हमने अर रजुलु सालिहु बना करके जालिसुन बना दिया हमने, अर रजुलु सालिहुन जालिसुन। क्लियर हुआ? इसी तरह से अगर मैं कहूं कि उमर मेहनती लड़का है, उमर मेहनती लड़का है, तो उमर हमारा मुब्तदा बन गया, उमरु, उमरु हमारा खबर बन गया, मुब्तदा बन गया। अब यहाँ कोई कंफ्यूज ना हो कि यहाँ तो जैदुन के ऊपर 2 पेश लगा था, अरे यहाँ उमर के ऊपर 1 पेश लग रहा है, ऐसा कहीं को भाई? यहाँ जैदुन के ऊपर तो 2 पेश लग रहा था, यहाँ तो समझ में आया कि चलो ठीक है, अलिफ लाम लगने की वजह से वो तो 1 पेश हट जाता है, लेकिन यहाँ पे उमरू को ऊपर में 1 पेश मैंने क्यों लगाया? गैर मुनसरी है, माशाल्लाह। इस चीज को भी क्लियर करते जाए, छोटा छोटा पॉइंट को क्लियर करते जाए। अब हमारा जो खबर है वो मेहनती लड़का, मेहनती लड़का के माने, मेहनती को अरबी में कहते हैं मुज्तहिद, मुज्तहिद। और मुज्तहिद चूंकि सिफत है तो सिफत बाद में आएगा, लड़का वलदू, तो हम मारिफा को नकरा, यानी अब उमर हो गया हमारा मारिफा, मारिफा ही है ये, 2 पेश नहीं है, अगर से मारिफा है, इसमें अलम है ये, तो मारिफा बनकर आ गया। और हमारा जो सिफत है मौसूफ है, मौसूफ ये है कि हमारा वलदू है ना, तो वलदुन मुज्तहिदुन, उमरु वलदुन मुज्तहिदुन। उमर जो है ना वो मेहनती लड़का है, उमर मेहनती लड़का है।
یہ تھا ہمارا مبتدا جو کہ ہمارا معرفہ تھا، اور یہ تھا ہمارا خبر جو کہ مرکب توصیفی بن کر آتا، مرکب توصیفی بن کر آتا، اور تھا بھی ہمارا نکرہ۔ کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ ایک مرکب ناقصہ کو ہم نے دیکھ لیا، مرکب توصیفی کا استعمال ہم نے دیکھا۔ مرکب توصیفی کبھی خبر بن کر بھی آ رہا، کبھی خبر بن کر آ رہا، کبھی خبر بن کر آ رہا، اور کبھی مبتدا بن کر بھی آ رہا ہے۔ تو پہلا مرکب ناقصہ کو ہم نے جملہ کے اندر استعمال کیا اور مختلف جملے بنائے۔ اب رول اب اپلائی کریں گے، خود بخود گھر پریکٹس کریں گے، بے شمار جملے بنا سکتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایک جملہ لے لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا سچے رسول ہیں، تو اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیں گے ہم مبتدا، اور سچا رسول کو ہم نے مرکب توصیفی اپلائی کر کے ہم نے بے شمار جملہ بنانا، ہمیں گھر پہ پریکٹس کرنا ہے ہمیں ضرور سے ضرور، ٹھیک ہے۔ ایک مرکب توصیفی ہمارا کلیئر ہو گیا۔ یہاں تک اگر کسی کوئی سوال ہو تو جلد سے جلد پوچھے، کیونکہ یہاں سوال پوچھیں، جو ذہن میں آئے وہ پوچھے، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، میسج میں پوچھے، مائک آن کر کے پوچھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے رول آپ لوگ کو دے دیا، رول آپ لوگ کو دے دیا، رولز کو اپلائی کریں۔ سمپل ہے، دیکھیے مبتدا اور خبر کا رول آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، خبر بھی ہمیشہ حالت رفع کے اندر ہوگا۔ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگا۔ مبتدا اور خبر آپس میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت کریں گے۔ جب ہم نے مبتدا اور خبر کو بنانے کے لیے شروع کیا تو ہم نے جب اردو کے کنسٹرکشنز دیکھے تو ہم نے دیکھا کہ مبتدا مفرد آ رہا بعض دفعہ، اور خبر میں جو ہم نے مرکب ناقص مرکب توصیفی پڑھا تھا تو مرکب توصیفی خبر بن کر آ رہا تھا۔ اب مرکب توصیفی کا رول بھی اپلائی ہوگا کس پر؟ خبر کے اندر، اور خبر کا بھی رول اپلائی ہوگا۔ انشاءاللہ ابھی اور چلیں گے آگے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک ہمارا ہو گیا مرکب توصیفی مکمل۔ اب ہمارے پاس ایک اور مرکب کے اندر آتے ہیں، وہ یہ ہے، میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں ابھی کہ یہ قلم ہے، یہ قلم ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا ضمائر کا استعمال جملہ اسمیہ کے اندر، سوری ضمائر بول رہے میں، اشارہ کا استعمال مرکب جملہ مرکب تام کے اندر۔ تو ہم سمپل سے بنا دیے اس کو، ہم نے ھذا قلم، ھذا قلم، یا یہ ہمارا ہوا مبتدا، یہ مبتدا تھا، اور یہ کے بارے میں خبر مل رہا ہے کہ یہ جو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ قلم ہے، یعنی خبر مل گیا مجھے۔ اور ھذا چونکہ ہم نے معرفہ کے 5 اقسام میں سے پڑھا ہے کہ ھذا جو اس میں اشارہ ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، تو معرفہ کے لیے ایک دم فٹ ہم نے فٹ کر دیا۔ اور قلم جو ہے مذکر، یہ آپ کا نکرہ بنا کر کے ہم نے لے کر آ گیا۔ قلم کچھ بھی قلم ہو سکتا ہے، نہ یہ اس میں علم ہے، نہ یہ اس میں اشارہ ہے، نہ یہ اس میں ضمائر ہے، نہ یہ اس میں موصول ہے، اور نہ ہی معرب باللام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے بنا دیا ھذا قلم، تو ہم نے مبتدا اور خبر ملا اور ہمارے پاس ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کہوں یہ قلم پرانا ہے، یہ قلم پرانا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ میں اگر صرف یا کو مبتدا بنا دوں تو قلم پرانا ہے کچھ میچ نہیں کر رہا۔ ہاں، یہ قلم کو میں مبتدا بنا سکتا ہوں کہ یہ قلم کے بارے میں خبر مل رہی ہے کہ پرانا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ قلم ہمارا بن گیا مبتدا، اور پرانا خبر ہے کہ ویسے بھی مفہوم نہیں ہے۔ تو ہم نے اب غور کرنے کی بات ہے کہ یہ قلم کون سا مرکب تھا، یہ قلم کون سا مرکب میں آ رہا، کون بتائے گا؟
तौसीफी का भी पढ़ लिया हमने। तौसीफ में तो मौसूफ व सिफत होता है। ये कलम, इसमें इशारा, मुरक्कब इशारी पढ़ा था हमने। मुरक्कब इशारी पहचाना तो एकदम आसान है, जहां इशारा आ जाए बस सिंपल से क्लियर कट बोल दे कि ये तो मुरक्कब इशारा है, मुरक्कब इशारी है। तो हमने मुरक्कब इशारी पढ़ा था, यानी अब हमने देखा कि मुब्तदा जो है मुरक्कब इशारी बनकर आया। अब मुब्तदा हालत रफा में होगा और मारिफा होगा, और मुरक्कब इशारी का भी रूल मुब्तदा के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो मुरक्कब इशारी में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हम मुशारुन इले को तैयार करेंगे। इसमें इशारा है ना ये, और ये मुशारुन इले है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलिफ लाम वाला बना करके मुरक्कब इशारी को तैयार करेंगे। तो कलम को हम बनाएंगे अल कलमु, और करीब का इशारा उठाएंगे हाजल कलमु, और पुराना यानी खबर जो हमारा आएगा वो नकरा आएगा। पुराने के लिए क्या अरबी में इस्तेमाल होता है, कदीमुन। तो हमारे पास आ गया कदीमुन, हाजल कलमु कदीमुन। किसको नहीं समझ में आया बताएं। हाजल कलमु कदीमुन, ये हमारा मुरक्कब इशारी बना। अब आपका ध्यान देखिए, दौड़ाइए यहाँ पे पहले। मुरक्कब इशारी है, मुब्तदा बनकर आया। हमें पता है कि हाजा है जो ये मबनी, इसमें ये हालत रफा नसब जर सब में वो एक जैसे रहेगा। हमें पता कैसे चलेगा, मुशारुन इले से पता चलेगा। तो हमने देख लिया मुशारुन इले के ऊपर एक पेश है अलिफ लाम लगने की वजह से, यानी हालत रफा में मुब्तदा का रूल अप्लाई। और साथ ही हमने जब मुब्तदा का रूल अप्लाई करके तो मुरक्कब इशारी का भी रूल अप्लाई कर दिया। तो हाजल कलमु कदीमुन, कदीमुन पुराना है, खबर है, और खबर हमेशा नकरा आता है, तो हमने खबर को नकरा लेकर आ गए। हाजल कलमु कदीमुन। हमारे पास देखिए मुरक्कबात हमने जो पढ़ा है वो हमारे जहन में होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हम जुमला इस्मिया बना रहे हैं, और जुमला इस्मिया का रूल ये था कि मुब्तदा खबर मिलकर बनता है। अब हम मुरक्कबे नाकिसात जितने भी पढ़े थे, हम या तो मुब्तदा की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं या खबर की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। मुरक्कब तौसीफी हमने जब देखा तो मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बनकर आ रहा था और खबर भी बनकर आ रहा था। अब हमने एक और मुरक्कब नाकिस का इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो है मुरक्कब इशारी। तो मुरक्कब इशारी में हमने देखा कि ये कलम जो है मुब्तदा बनकर आ रहा है मुरक्कब इशारी, तो मुरक्कब इशारी का रूल अप्लाई कर दिया हमने, हाजल कलम। और चूंकि पुराना ये खबर है और खबर नकरा होता है, तो हमने कदीमुन इस्तेमाल कर लिया। ये नकरा क्यों है, क्योंकि ये मार्फा के 5 अक़साम में से है ही नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते, चलिए ठीक है, इसी से जुड़ा थोड़ा ले लेते हैं। ये कलम के बारे में खबर दिया था हमने। अब हम खबर देते हैं गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी पुरानी है, ये गाड़ी पुरानी है। अब परेशान हो जाएंगे, गाड़ी का वो वोकैबुलरी क्या निकलेगा अरबी के अंदर, वो मैं बता दूंगा। हाँ हाँ हाँ, हाजा सैयारतु कदीम। एक मिनट, चले पहले उनका ले लेते हैं। हाजा कर दिया मैंने, हाजा अस्सैयारतु कदीमुन, ठीक है। सही है, सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है आप मुझे बताओ। गाड़ी मुअन्नस है, तो जब मुअन्नस हमारा, हाँ माशाल्लाह आप समझिए, तो ये हो जाएगा
हाज़िही सय्यारतु कदी कदी हाज़िही सय्यारतु कदीमतुन। अब यहाँ अब आपका जहन दौड़ना चाहिए कि आपको पहले देखना है कि मैंने बताया था कि इसमें इशारा में सबसे पहले मुशारुन इलेह को तैयार करना था। मुशारुन इलेह जब हमारा तैयार होगा तब हमें उसके हिसाब से इसमें इशारा इस्तेमाल करना था। गलती क्या कर दिया हमने कि पहले मुशारुन इलेह को तैयार ना करके पहले इसमें इशारा को तैयार कर दिया। रूल हमेशा अप्लाई करने की कोशिश करें, रूल जब अप्लाई करेंगे तो आपका क्लियर होना शुरू होगा। अब हमने देखा हाज़िही सय्यारतु जो है हमारा मुब्तदा आ गया और ये मारिफा बनकर आ रहा है। मारिफा कैसे पता चल रहा है हमें? ये अलिफ लाम हमारे चूंकि मुशारुन इलेह जो है वो मारिफा आ गया। अब हमारा जो खबर था ना, अब याद करें मुब्तदा और खबर क्या करता आपस में? जिन्स और अदद के एतबार से, जिन्स और अदद के एतबार से मुताबिकत करता है। तो जब मैंने देखा कि हमारा जो खबर मुब्तदा है वो मुअन्नस आ रहा है तो हमारा खबर भी तो मुअन्नस आएगा ना, तो हमारा मुअन्नस खबर आ गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमने पिछले जो चार हमने पहले बताया था ना कि जुमला में इस्तेमाल करने से पहले किसी भी इसम के बारे में चार चीजें होना जरूरी है, लाजिम हमें पता। मुज़क्कर मुअन्नस, उसकी तादाद, उसके बाद मारिफा या नकरा यानी उसरत होना उसका समझ में आना और उसका एराब होना समझ में आना जरूरी है हमें। तो हमारे पास समझ में आएगा हाज़िही सय्यारतु कदीमतुन, हाज़िही सय्यारतु कदीमतुन। अच्छा, यहाँ एक और टेस्ट लेते हैं, थोड़ा ब्रेन को और मजबूत करते हैं। ये एक कलम कह सकता हूं ना मैं उर्दू के अंदर, ये एक कलम पुराना है। अब अगर मैं कहूं कि ये दो कलम जो मेरे हाथ में है, ये दो कलम पुराना है, ये दो कलम पुराना है, तो पहले दो कलम को बनाएंगे ना। दो कलम के लिए क्या होगा? कलम को मारिफा बना के लेंगे। हाजानी कलमानी यानी मिलाकर पढ़ेंगे तो हाजानील कलमानिल कलमानी। उसके बाद क्या होगा? खबर। हाँ 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 पहुंच गए, चले। और रूल सोचे, रूल सोचे। मुब्तदा और खबर जिन्स में और आदत में मुताबिकत। हाँ कदीमानी, कदीमानी, हाजानिल कलमानी कदीमानी। अब देखें यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, अब यहाँ पे क्लियर समझ में आया होगा कि मुब्तदा हमारा मुसन्ना बनकर आ रहा था और तो हमारा खबर भी मुसन्ना आएगा क्योंकि आपस में एक दूसरे की मुताबिकत करता है। तो हमारे पास दो कलम पुराने हैं, हाजानिल कलमानी कदीमानी। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझा पाया मैं? कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बस अगर समझ में आ जाए तो। अब अगर मैं करूँ दो गाड़ी पुरानी है तो, दो गाड़ी पुरानी है तो पहले सय्यारतु को दो बनाते, दो गाड़ी बनाते ना। सय्यारतानी गोलता को लंबी ता में बदलेंगे और रूल अप्लाई, आखिरी हर्फ पर जबर और फिर अलिफ नून ज़ेर का इजाफा। अस्सय्यारतानी, चूंकि हमारा मुसारुन लिए तैयार तो हमारा इशारा क्या होगा? हा, सब भूल गए हैं, सब भूल गए। हातानी सय्यारतानी कदीमतानी। हातानी सय्यारतानी कदीमतानी। होगा कॉन्सेप्ट क्लियर? मुसन्ना क्लियर? अच्छा, मुसन्ना बन गया, जमा बनाते हैं। बहुत से कलम में एक और कलम ऐड कर दूं, अगरचे मेरे पास नहीं है, तसव्वुर कर ले। तो अगर मैं कहूं ये कलमें, ये बहुत से कलम पुराने हैं, तो क्या होगा? कलम को बनाएंगे ना, और कलम हमारा क्या होता है? हाँ, जमा है, मुकस्सर इस्तेमाल होता है ना, अकलामुन होता है ना। तो पहले हम अल अल अकलामु हमारा रेडी,
तो इशारा उठाते हैं, इशारा क्या था, हाउलाई, हाउलाई था ना, ठीक है, हाउलाई, ठीक है। और उसके बाद हमने कदीमों को कदीमूना कर देते हैं, सही है, हाउलाई अकलामु कदीमूना, सही है। कदीम, कदीमानी, कदीमूना, पक्का, सही है। आकिल और गैर आकिल का फर्क बताया था ना मैंने आपको उस दिन, याद आ रहा कुछ? तो ये आकिल है या गैर आकिल है? माशाल्लाह, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना कि छोटी छोटी चीज आप समझ में आ रहा है क्यों पढ़ाया था उस दिन। तो हमारे पास जब मुशारुल इलेह जमा साली में जमा मुकस्सर इस्तेमाल हो तो उसके लिए जो इशारा होता है वो वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होता है। तो हमारा वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल होगा हाज़िही, हाज़िहिल अक़लामु। तो खबर क्या आएगा? खबर भी वाहिद मुअन्नस आएगा। हाज़िहिल अक़लामु क़दीमतुन, हाज़िहिल अक़लामु क़दीमतुन, देख लीजिए यहाँ पे क्लियर आ रहा है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, सिर्फ दो मुरक्कब बताने में इतना टाइम निकल रहा है, अभी और दो मुरक्कब बचा हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, चले माशाल्लाह। बोलिएगा मत, आकिल और गैर आकिल भी हमने पढ़ा था, हमने जो कुछ पढ़ा था आज सारा का सारा रूल अप्लाई होगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं छूटेगा। तो दूसरा मुरक्कब नाकिसा हमने पढ़ लिया, और दूसरा मुरक्कब नाकिसा में हमने देखा कि जो हमारा मुरक्कब इशारी है वो मुब्तदाई बनकर आ रहा है, ये खबर बनकर नहीं आता है। मुरक्कब इशारी जो है ना, ये हमेशा जब आएगा ना, जुमला में इस्तेमाल होगा ना, तो हमेशा मुब्तदा के जगह पे आएगा, ये खबर बनकर नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से मुरक्कब तौसीफी हमने देखा, मुब्तदा भी बनकर आया और खबर भी बनकर आया। लेकिन मुरक्कब इशारी जो है ना, मुरक्कब इशारी, एक मिनट, बाकी लोग गायब हो गए। मुरक्कब इशारी बनकर आया, मुरक्कब इशारी जो था हमारा मुब्तदा ही बनकर आया, इसके अलावा कुछ बनकर नहीं आया, खबर बनकर नहीं आया। चले, हमारा दो मुरक्कब नाकिसा मुकम्मल। ये क्लास अगर क्लियर हो गया ना आप लोग का, तो इंशाअल्लाह ताला जब कुरान पढ़ेंगे ना, तो जो मजा आएगा ना आप लोग को, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा जब ये मुकम्मल हुआ था, उसके बाद जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और कुरान को जब तर्जुमा करना शुरू किया, बिलीव करिए कुरान का तर्जुमा खुद करेंगे, तर्जुमा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी आयत जो होंगी ना, अभी आप देखेंगे, आप खुद करेंगे। अभी मैं आपको छोटी छोटी हदीसें लिखूंगा नबी अलैहिस्सलाम की, उसका तर्जुमा आप खुद करेंगे और खुद एनालाइज करेंगे ग्रामेटिकली इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, तो हमारा दो मुरक्कब नाकिसा क्लियर, मुरक्कब तौसीफी क्लियर, मुरक्कब इशारे क्लियर। तीसरा मुरक्कब था हमारे मुरक्कब इजाफी। ठीक है, ये कहाँ आता है? तो मैं एक जुमला लिखता हूं कि भैया जैद जो है लड़का है, जैद लड़का है ना, लड़की नहीं हो सकता। अगर किसी ने अपना नाम रख लिया होगा लड़की तो अलग मसला है। तो जैद लड़का है, मुब्तदा एक है मुफरद, तो हमारा अरबी एकदम रेडी है, एकदम सिंपल सा, ज़ैदुन वलदुन, ज़ैदुन वलदुन। मुब्तदा हमारा मारिफा, खबर हमारा नकरा, दोनों हालत रफा में। ज़ैदुन वलदुन हमारा सिंपल सा डिफरेंस। अब अगर मैं कहूँ जैद जो है ना वो हामिद का लड़का है, मैं जुमला पढ़ाऊं अगर, तो जैद जो है हामिद का लड़का, हामिद का लड़का, इसको स्ट्रेट करके रखिए तब मैं इससे ही पढ़ाऊँ।
زید جو ہے حامد کا لڑکا، نظر آ رہا ہے نا، تھوڑا دھندلا دھندلا دکھ رہا ہے نا سب کو؟ زید حامد کا لڑکا ہے۔ اب یہاں پہ ہم تلاش کریں گے کہ مبتدا کسے بنا ہے، خبر کس کو بناتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اچھا زید اور حامد یہ دونوں مبتدا تو بن نہیں سکتا، ہاں زید کے بارے میں خبر مل رہا ہے کہ وہ حامد کا لڑکا، لہٰذا ہم نے دیکھا کہ زید جو ہمارا مبتدا بن گیا اور حامد کا لڑکا خبر بن گیا۔ اب آپ کا ذہن دوڑ رہا ہوگا کہ حامد کا لڑکا یہ کون سا مرکب بن کر آیا ہمارے سامنے؟ کون سا مرکب بن گیا ہمارے سامنے؟ کوئی ہے نہیں مائک آن کر سکتے، زیادہ کوئی اور نہیں ہے، ہر کوئی مائک آن کر کے بول سکتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی کسی کی؟ زید مرکب اضافی بن کر آ گیا نا، بس ماشاء اللہ۔ تب ہم نے رول اپلائی کر دینا، مبتدا ہمارا خبر بن کر آ گیا زیدون، اور حامد کا لڑکا تیر چلا دیا ہم نے، لڑکا پہلے مضاف بن کر آیا تو ولدو رول اپلائی ہوگا، الف لام نہیں آئے گا اور تنوین بھی نہیں آئے گا تو ولدو ہو جائے گا، ولدو حامد مضاف الیہ اور حالت جڑ میں، حالت زر میں آ گیا زیدن ولد حامدن، زیدو ولد حامدن۔ اس کا ہم ایک معنی اور بھی کر سکتے ہیں، ایک اور ترجمہ کر سکتے ہیں زیدن ابن حامدن، اکثر زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم زیدن ولد حامدن۔ تمہارے پاس آ گیا مرکب۔ اب ہم نے دیکھا کہ خبر جو ہمارا ہے وہ مرکب اضافی بن کر ہمارا خبر آ رہا ہے، مرکب اضافی بن کر ہمارا خبر آ رہا ہے۔ کلیئر ہو یہاں تک؟ کوئی سوال اس پر؟ تاکہ میں ایک اور ایگزامپل دوں، اسی زید کے بارے میں ایک اور خبر دے دیتا ہوں میں کہ یہی جو زید ہے نا وہ زینب کا بیٹا ہے، زید جو ہے زینب کا لڑکا ہے۔ کون کرے گا ٹرانسلیشن اس کو؟ ٹرانسلیشن کر کے زینب کا لڑکا ہے زید، زید جو ہے وہ زینب کا لڑکا ہے، تو اس کا ٹرانسلیشن کون کرے گا؟ ایک دم سمپل ہے، زیدن ولدو زینبا ہوگا یا زینبی ہوگا؟ غیر منصرف اسم، بس ماشاء اللہ، چلے کلیئر ہوگا، کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں، اب اگر آپ اور اردو جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا پھر احادیث پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اچانک سے کبھی زیر آ جا رہا ہے، کبھی ایک زیر آ جا رہا ہے، کبھی دو زیر آ جا رہا ہے، کبھی اچانک سے پیش آ رہا ہے، کبھی دو پیش آ جا رہا، مائنڈ آپ کا کنفیوز ہو جائے گا، گھومتے رہ جائے گا کہ بھیا کیا مطلب، کچھ ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہیں پیش آ رہا ہے، کہیں دو پیش آ رہا ہے، کوئی زیر آ رہا ہے، یہ مطلب کیا ہے؟ تو اب آپ کو سمجھ میں آ ہوگا کہ جہاں زیر پیش اور دو پیش یا ایک زیر آپ کو نظر آئے گا تو اب آپ کلیئر سمجھ پائیں گے کہ کیوں آ رہا ہے۔ تو اگر ہم پیچھے نہیں پڑے ہوتے تو آپ کو یہ سب چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہو گیا یہاں تک ہمارا مرکب اضافی بھی ہم نے دیکھا کہ مبتدا بن کر ابھی نہیں آیا، خبر بن کر آیا۔ اب اگر میں کہوں قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن جو ہے اللہ کا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو ایک دم آپ کا مائنڈ کام کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ قرآن، اچھا ہاں قرآن کو مبتدا بنا سکتے ہیں، ایک دم فٹ ہے، اور اللہ کا کلام چونکہ ہمارے پاس مضاف الیہ مرکب اضافی بن کر آ رہا ہے تو قرآن کو ہم نے اٹھایا اور قرآن کو ہم نے کر دیا معرفہ، چونکہ مبتدا کی جگہ پر لے کر آنا ہے تو ہم نے کیا القرآن، القرآن، پھر چلائیں گے ہم کلام، کلام اللہ، القرآن کلام اللہ، القرآن کلام اللہ۔ تو تین ہم نے دیکھا، تین ہم نے جو بنایا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ
مرکب اضافی جو ہے ابھی خبر بن کر آ رہا ہے, ابھی مبتدا کی جگہ پر نہیں آیا. 3 ہمارا ہم نے اگزامپل دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ اب تک مبتدا کی جگہ پر مرکب اضافی کا استعمال نہیں ہوا. اب اگر میں کہوں کہ اللہ کا کلام حق ہے, کوئی شک اس میں؟ اللہ کا کلام حق ہے, اللہ کا کلام حق ہے. اب آپ کا دماغ کام کیا گا, اچھا اللہ صرف ہم یہ نہیں بنا سکتے ہیں مبتدا کا کلام حق ہے تو یہ خبر بن بھی نہیں سکتا, ہاں لہذا اللہ کا کلام جو کہ ایک مرکب بن کے بھی آ رہا مرکب اضافی, تو اس کو ہم مبتدا بنا سکتے. تو اب ہم کیا کریں گے, پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیے, مبتدا ہم نے اللہ کا کلام یعنی مرکب اضافی ریڈی کر دیں گے, یہاں سے اٹھائیں گے کلام اللہ اور حق عربی کا ہی لفظ ہے, اور نکرہ بنا کے لے کر آئیں گے تو ہو جائے گا ہمارا حق کن, کلام اللہ حق کن, کلام اللہ حق کن. اب یہاں پہ ایک آپ کو بہت بڑا پوائنٹ ملنے والا ہے. میں نے بتایا تھا کہ آپ کو کہ جو ہمارا خبر ہوگا وہ نکرہ آئے گا, تو میں نے مرکب اضافی کو خبر کی جگہ پہ استعمال کیا تھا, لہٰذا یہ نکرہ ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے سوچا کہ اچھا مرکب اضافی جو ہے وہ نکرہ ہے, الف لام بھی نہیں ہے اس کے اوپر, تو ہم نے بولا کہ چلو اچھا یہ نکرہ ہے. لیکن آپ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب مرکب اضافی مبتدا بن کر آ گیا, اور مبتدا جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ ابھی تو نکرہ جگہ پہ لے کر آتے ہیں ہم اس کو, اب یہ معرفہ بنا کر لے کر آ گیا اس کو ہم, یہ کیسے؟ تو نوٹ کرنے کی بات ایک یہ ہے کہ ہم نے جو معرفہ کے 5 اقسام پڑھے تھے, میں نے بتایا تھا کہ ٹوٹل معرفہ عربی کے اندر 7 مقامات پر ہوں گے, 7 حالتوں میں کوئی بھی اسم معرفہ ہوگا. ہم نے 5 پڑھا تھا, 2 چھوڑ دیا تھا. چھٹا معرفہ کا قسم آج ہم پڑھیں گے اور وہ ہے مضاف الی المعرفہ. مضاف الی المعرفہ, مضاف الی المعرفہ. اب یہ مضاف الی المعرفہ کیا ہے؟ جب کبھی مضاف خبر کی جگہ پر آئے گا تو وہ خبر کے لیے معرفہ بن کر آئے گا. اب یہ تھوڑا ایک ورڈ ٹف ہے آپ کو سمجھنے کے لیے, اس کو عام طور پہ میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ جو ہمارا مضاف الیہ ہے نا, یہ مضاف الیہ کی وجہ سے, چونکہ الف لام لگا ہوا اللہ کے اوپر تو یہ معرفہ ہے, تو یہ مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف بھی معرفہ ہو جائے گا, چونکہ یہ خبر کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اور خبر معرفہ ہوتا ہے. تو جب کبھی مرکب اضافی کا استعمال ہوگا اور مضاف الیہ اس کا معرفہ استعمال ہو رہا ہے, کیونکہ ہم پہ چھوٹ تھا کہ ہم چاہیں تو مضاف الیہ کے اوپر الف لام لگائیں گے, چاہیں تو مضاف الیہ کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے, لیکن چونکہ اللہ کے اوپر الف لام آلریڈی لگا ہوا رہتا ہے تو یہ آلریڈی ہی مضاف الیہ جو ہمارا ہے معرفہ ہے, اور معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ مضاف بھی معرفہ ہو گیا. اب آپ کا سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب یہ معرفہ ہے کلام اللہ مضاف یہ مرکب اضافی, تو خبر کی جگہ پہ کیسے استعمال کر لیا میں نے, جبکہ خبر تو نکرہ استعمال ہوتا ہے. تو میں بتاتا چلوں آپ کو کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا, یہ تو کلیئر کٹ ہے, لیکن نکرہ جو ہمارا ہوگا خبر, وہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جو ہمارا خبر ہوگا وہ نکرہ آنا چاہیے ہمارا. ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہمارا خبر جو آئے گا وہ نکرہ ہے, لیکن اگر جہاں ممکن نہ ہو وہاں مجبوراً اس کو معرفہ لائیں گے. مثال میں اگر کہوں میرے لیے انا سرفراز, انا بھی چونکہ معرفہ کا اقسام ہے یعنی ضمیر ہے, اور سرفراز اس میں علم ہے, دونوں معرفہ ہو گیا. خبر میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ میں خبر کو نکرہ لے کر آؤں, سرفراز اب چونکہ اب ایک اس میں علم ہے, اب اس کو کسی بھی طریقے سے ہم خبر کو نکرہ نہیں لے کر آ سکتے,
تو جہاں پاسبلٹی ہوگا وہاں ہم اس کو خبر کو نکرہ لے کر آئیں گے، جہاں پاسبلٹی نہیں ہوگا وہاں ہم معرفہ لے کر آئیں گے. لہٰذا یہاں پاسبل نہیں تھا کیونکہ اللہ آلریڈی معرفہ ہے، اور اس کی معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گیا، مضاف بھی معرفہ ہو گیا. کلاس چل رہا ہے کچھ آپ پتہ، اور اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ بھی معرفہ ہو گیا. تو لہٰذا ہم نے نیا معرفہ کا ایک قسم پڑھ دیا، چھٹا قسم، اور وہ ہے مضاف الی المعرفہ، کہ جب کبھی بھی مضاف مبتدا کی جگہ پر استعمال ہوگا تو وہ مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کلیئر یہاں پہ سمجھ میں آئے گی، یعنی مضاف مرکب اضافی ہمارا خبر بن کر آیا معرفہ، اور حقن یہ ہمارا نارمل آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا اردو سے عربی کے اندر. اردو سے عربی کے اندر 15 منٹ اور لوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کو اختتام کروں گا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے عربی سے اردو کے اندر ٹرانسفر کریں گے. کیا ہم نے اردو سے عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کر لیا؟ اب ہم عربی سے اردو کے اندر ٹرانسلیٹ کریں گے. جو ہم نے پڑھا ہمارا بیس ہم کو کلیئر سمجھ میں آ گیا کس طرح سے مبتدا اور کس طرح سے خبر کا استعمال کریں گے. اب ہمیں پہچاننا ہے عربی کے اندر کہ کون سا مبتدا بنائیں گے اور کون سا خبر بنائیں گے. تو میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیارۃ مریم سریعۃ. سیارۃ مریم سریعۃ. اب آپ کا ذہن کام کرنا شروع کرنا چاہیے. آپ نے پہلے دیکھا اچھا سیارۃ، اچھا پہلا جو ہمارا اسم ہے وہ اس پر الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے. اچھا مضاف الیہ یا مضاف بن رہا ہے. ہم جب کنفرم کریں گے اگلا اسم کو دیکھیں گے جب یہ حالت جر میں ہے تو کنفرم کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا یہ تو حالت جر میں ہے ہی نہیں. مریم حالت جر میں، ماشاءاللہ، یعنی یہ حالت جر میں ہے. بس یہی کنفرم کرنا تھا میرے کو کہ سیارۃ مریم. اچھا یہ ایک مرکب بن کر آ رہا ہے، یعنی مرکب اضافی ہمارا مبتدا بن کر آ گیا. اور مریم کی گاڑی کے بارے میں کچھ خبر مل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ سریعۃ. سریع کا معنی ہوتا ہے تیز. تو ہم نے اردو بنا لیا کہ مریم کی گاڑی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مریم کی گاڑی تیز ہے. اب دیکھیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، دیکھیں سیارۃ مریم سریعۃ میں الف لام نہیں ہے اور یہ معرفہ بھی نہیں، یعنی ہمارا جو خبر ہے یہ خبر بن گیا ہمارا، اور یہ ہمارا مرکب اضافی ٹوٹل مبتدا بن گیا. سیارۃ مریم سریعۃ. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو عربی کے اندر. میں اگر کہوں باب مسجد، باب المسجد مفتوح. تو آپ کا ذہن کام کر رہا ہوگا، اچھا الف لام نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، مضاف بن رہا ہے. اگلا اسم ہم کنفرم کریں گے اگلا اسم کو جب حالت جر میں دیکھیں گے. تو باب المسجد یعنی مسجد کا دروازہ. اچھا مسجد کے دروازے کے بارے میں مطلب خبر مل رہا تھا، یعنی یہ ہمارا بن گیا مبتدا. بابو مسجدی یعنی مرکب اضافی ہمارا ٹوٹل مبتدا بن گیا، اور اس کے بارے میں خبر مل رہا ہے کہ مفتوح کھلا ہوا ہے. تو ہمارے پاس جملہ آ گیا کہ مسجد کا دروازہ کھلا ہے. مسجد کا دروازہ کھلا ہے. کلیئر ہے؟ یعنی اب ہم نے دیکھا کہ مرکب اضافی مبتدا بن کر بھی آ گیا اور خبر بن کر بھی آ گیا. جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا بھی بن کر آ گیا اور خبر بھی بن کر آ گیا. ٹھیک ہے، اچھا اب آتے ہیں تھوڑا سا اور ایک دو ایگزامپل اور کرتے ہیں. امید کرتا ہوں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے وقت کے اندر بٹ کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی سوال یہاں تک؟
कोई सवाल नहीं, कोई दिमाग काबू में नहीं होगा शायद ना, इसलिए मैंने बताया था कि मश्क करके रहिएगा अच्छे से। जब मश्क करिएगा, ठीक है कोई मसला नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, उसको एक दो बार और देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, एक वक्त में नहीं समझ में आता। अच्छा, मैं अब अगर लिखता हूँ एक अरबी का कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, वो ये है कि हाज़िहिल बिन्तु, हाज़िहिल बिन्तु उख्तु फातिमतु। अब आपके पास चार आपको मिल रहा है वर्ड, चार इसमें मिल गया, हाजी, अल बिन्तु, उख्तु, फातिमतु। अब आपका जहन काम करेगा, अच्छा हाजी ही ये मुरक्कब इशारी बन सकता है। मुरक्कब इशारी हमने देखा, इशारा तो मिल गया, हमें कंफर्म हम करेंगे कि अच्छा अगला इसम या अलिफ लाम के साथ आ रहा है, मारिफा बनकर आ रहा है और पेश भी है, एक पेश है, यानी हमको कंफर्म क्लियर होगा हाजिहिल बिन्तु यानी ये मुरक्कब इशारी, हाजिहिल बिन्तु मुरक्कब इशारी बन गया हमारा, यानी मुब्तदा हमारा अब मुरक्कब इशारी बनकर आया। लिख दो ताकि क्लियर सुनिए, मुरक्कब इशारी हमारा बनकर आ गया मुब्तदा, उख्तु फातिमतु, उख्तु फातिमता, लिखा भी नहीं रहा यार, उख्तु फातिमा ता। तो आपने देखा कि उख्तु, अच्छा अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, मुजाफ बन रहा है, लेकिन कंफर्म किया हमने देखा कि फातिमा ता, तो ये गैर मुनसरिफ, हमने देखा कि जबर के साथ आया, इसका मतलब अच्छा। अब हमारा जो खबर है वो मुरक्कबे इजाफी बनकर आ गया। तो हमने देखा कि अब हमारे जुमला इस्मिया के अंदर दो मुरक्कब नाकिसा इस्तेमाल हुआ, तो हमारे पास जुमला को जब तर्जमा करेंगे तो क्या होगा कि ये लड़की, हाज़िहिल बिन्तु, ये लड़की, उख्तु फातिमा था, उख्तु का माना होता है बहन, फातिमा की बहन है। तो हमने देखा कि मुरक्कब इशारी हमारा मुब्तदा बना और मुरक्कब इजाफी हमारा खबर बन गया, तो हमने बना दिया हाज़िहिल बिन्तु, ये लड़की, उख्तु फातिमा था, यानी ये लड़की फातिमा की बहन है। आ रहा समझ में? माशाअल्लाह, यही सुनना, बस ये सुनते तो अच्छा लगता है, ताकि समझ में आ रहा। एक और बनाते हैं, चलो ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि एक मिसाल ले लेते, चलो कोई अरबी करते हैं, बिन्तु हामिदीन, बिन्तु हामिदीन तालिबतु मुज्तहिदुन, तालिबतुन मुज्तहिदुन। अब मरियम आप बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे आपको कौन सा खबर नजर आ रहा है, कौन सा आपको मुब्तदा नजर आ रहा है? मुरक्कब इजाफी, यानी ये हमारा परफेक्ट हमारा बन गया, हमारा मुब्तदा बन सकते हैं, ठीक है। बिन्तु हामिदीन हमारा खबर बनकर आ रहा है, यानी कि मुरक्कब इजाफी हमारा खबर बनकर आया। अच्छा, ये क्या आपको समझ में आ रहा है कि तालिबतुन मुज्तहिदुन, ये क्या आपको नजर आ रहा? आप अभी मुरक्कब तौसीफ है, इसमें इशारा है नहीं इसमें, यानी मुरक्कब इशारी नहीं आ रहा, वाज़ेह हो गया। और हमने देखा कि मुरक्कब इजाफी भी नहीं आ रहा, मुरक्कब इजाफी होता तो भैया एक पेश आता है यहाँ पर, और इस्लाम भी नहीं है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो दो पेश आ ही रहा, ये मुजाफ नहीं बन रहा, यानी ये साफ समझ में आ रहा है कि ये हमारा मुरक्कब तौसीफी, यानी मुब्तदा हमारा मुरक्कब अब इजाफी बनकर आया और खबर जो है हमारा मुरक्कब तौसीफी बनकर आ गया। तो हो गया बिन्तु हामिदीन, हामिद की बेटी,
तालिबतुन मुजतहिदुन, मेहनती तलबा मतलब मेहनती तालिब इल्म है। बिंतु हामिदिन, हामिद की बेटी मेहनती तालिबा है। अच्छा, अब एक जुमला लिखता हूं मैं अरबी के अंदर ही, वो ये है कि फातिमतु बिंतु रसूलिल्लाह। अब यह एक नया चीज आपको मिलेगा। आपने देखा फातिमतु बिंतु मुरक्कब तौसीफी बन नहीं रहा कि फातिमा बेटी, ऐसा कोई तो मुरक्कब तौसीफी नहीं बन रहा। हाँ, फातिमा को हम मुब्तदा बना सकते हैं। फातिमा को हमने, अब आपका जहन काम करेगा, बिंतु रसूलिल्लाही, चलो ये बिंतु समझ में आ रहा है, ये अलिफ लाम नहीं है, तो ये और बगैर तनवीन का आ रहा है, तो ये मुजाफ बन रहा है। कंफर्म करेंगे, अगला इसमें देखेंगे कि अलिफ लाम के साथ आ रहा है और हालत जर में, तो हमने देखा कि अलिफ लाम भी नहीं है लेकिन हालत जर में नजर आ रहा है। अगला इसमें हम जब कंफर्म देख रहे हैं कि अलिफ लाम के साथ भी और हालत जर में, अच्छा ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है, पेचीदा मुरक्कब इजाफी बन रहा है। तो हमारे पास जुमला आ जाएगा कि फातिमा हमारा मुब्तदा बन गया, ये मुब्तदा बन गया हमारा, और खबर हमारा पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनकर आ गया। फातिमा अल्लाह, अब उल्टा पढ़ते हैं ना हम लोग, मुरक्कब इजाफी को उल्टा पढ़ते हैं ना उर्दू के अंदर, अरबी को उल्टा पढ़ना शुरू करें, मुरक्कब इजाफी पढ़ना जाएगा उर्दू के अंदर। अल्लाह के रसूल की बेटी है, फातिमा अल्लाह के रसूल की बेटी है। अब शायद आस्ते आस्ते कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा शायद। यहां तक किसी को कोई सवाल? पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी बनकर हमारा पास आ गया, पेचीदा मुरक्कब इजाफी भी हमने पढ़ा था और हमने देखा कि खबर हमारा पेचीदा मुरक्कब इजाफी बनकर आया। ठीक है, अब इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलते हैं। और अच्छा, मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, सिंपल सा जुमला, थोड़ा सा ले चलता हूँ। अल्लाहु रब्बुना, अल्लाहु रब्बुना। तो हमने देखा कि अल्लाहु मुब्तदा बन रहा परफेक्ट। रब्बुना हमने कहां पढ़ा था? रब्बुना हमने कहां पढ़ा था? मेरा नहीं, हमारा रब, ना हमारा जो है जमीर, ना जमायर, यानी मुरक्कब इजाफी में अब जमायर का इस्तेमाल किया गया हमारे सामने। यानी अब हमारा जो खबर बना वो अल्लाह बन गया, यानी अल्लाह रब्बुना हमारा खबर बन रहा है। अल्लाह के बारे में खबर क्या मिल रहा है कि हमारा रब है, तो अल्लाह हमारा रब है। अब जो खबर हमारे पास आया वो मुरक्कब इजाफी में जमायर का इस्तेमाल आ गया हमारे पास। ठीक है, यानी वाज़े हो गया हमारा। अच्छा, अल्लाह हमारा रब है कि हमारा रब अल्लाह है, दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं ना एक बार, रब्बुना अल्लाहु, जब उर्दू में दो तरह से, रब्बुना अल्लाह क्यों इस्तेमाल करेंगे बताएं जरा हमको। मुरक्कब इजाफी तो यहाँ ऑलरेडी बन चुका, रब्बुना ये मुरक्कब इजाफी तो ऑलरेडी बन गया, मुब्तदा हमारा मुरक्कब इजाफी है। और मुरक्कब इजाफी में रफा कैसे पता चलेंगे? मुजाफ से, और मुजाफ हमें दिख रहा पेश के साथ, यानी ये हालत रफा के अंदर है। तो रब्बुना हमारा मुरक्कब इजाफी मुब्तदा बन गया। अब अल्लाह जो है ना, ये खबर है और खबर हमेशा हालत रफा में होता है। तो कुरान मजीद में आपको ये लिखा हुआ नजर आएगा, आपको ये कहीं नजर आएगा, कभी ये नजर आएगा, लेकिन कुरान मजीद में आपको ये नजर आएगा, रब्बुनल्लाहु इन्नल्लज़ीना क़ालू, यकीनन जिन लोगों ने कहा रब्बुनल्लाहु हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू और फिर उस पर जम गए, फिर उनके बारे में जो खबर मिलता है कि फिर उनके लिए अजर अजीम है। तो ये कुरान मजीद में आपको ये सेंटेंस आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। अच्छा, यहां तक हमने पढ़ा।
अपना बनाया हुआ सेंटेंस, कुरान मजीद का एक आयत हमने ले लिया। अब हम एक आते हैं एक हदीस की तरफ। एक छोटा सा हदीस है और वो हदीस का लफ्ज ये है कि दुनिया मज़रअतुल आखिरा, आखिरती। ये हदीस किस किस ने सुना था? ये बहुत मशहूर हदीस है। हम उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो हमें पता चला, देखिए अब यहाँ पे आपका जहन काम करेगा कि दुनिया अलिफ लाम के साथ आ रहा है, मारिफा आ रहा है। दुनिया मज़रअतु, ये ना मुरक्कब इजाफी बन रहा है, दुनिया मज़रअतु या ना तौसीफी बन रहा है, क्योंकि अगर तौसीफी होता तो इस पर भी अलिफ लाम लगा होता। मुरक्कब इशारी तो वैसे भी नहीं बन रहा है, लिहाजा दुनिया ऑलरेडी अकेले ही मुब्तदा बन रहा है। और दुनिया के बारे में बताया जा रहा है कि दुनिया क्या के बाद दुनिया के बारे में बताया जा रहा है, तो हमने देखा आगे जाकर के अच्छा इसमें अलिफ लाम भी नहीं है और तनवीन भी नहीं है, तो मुज़ाफ बन रहा है। और कंफर्म किया हमने जब अलिफ लाम के साथ आखिरा में जेर में देखा हमने, तो हमें समझ में आया कि आखिरत की खेती। तो हमारा जो खबर बनकर आया यहाँ पे, ये जो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान की थी और वो हमारे पास मुरक्कब इजाफी के तौर पर आया खबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी हदीस है, दुनिया मज़रअतुल आखिरती, कि दुनिया आखिरत की खेती है। ये हदीस किस किस ने सुना था पहले? अब जब कभी भी बयान करने की कोशिश करें लोगों के अंदर हदीस, तो अब आप अरबी में बयान करने की कोशिश करें। दुनिया मज़रअतुल आखिरती, ये नबी अलैहिस्सलाम की एक बहुत प्यारी हदीस है। और दो चार एग्जांपल है, एक दो एग्जांपल इंशाल्लाह रखता हूं और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और मुरक्कबे जारी जो था हमारा, मुरक्कबे जारी हमने जो पढ़ा था वो फिजूल नहीं था, वो भी आएगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5 मिनट और लूंगा इंशाल्लाह। एक और हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक हदीस है कि दुनिया सिजनुल मोमिनीन, दुनिया सिजनुल मोमिनीन। ये हदीस भी बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर हदीस है। अच्छा एक बात आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने दुनिया के ऊपर ना कोई पेश डाल रहा हूँ, ना जबर डाल रहा हूँ, ना जेर डाल रहा हूँ, कुछ नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं आपको बताता चलूं कि जब किसी इस्म के आखिर में अलिफ आ जाए ना, तो फिर उसका हालत रफा, हालत नसब, हालत जर हमें नजर नहीं आता, बस हमें मानना पड़ता है जहां वो इस्तेमाल हो। अलिफ जिस इस्म के आखिर में आ जाए उसका हालत रफा, नसब, जर हमें नहीं समझ में आता, बस हमें डिक्लेयर करना पड़ता है जहां इसका इस्तेमाल हो। चूंकि ये मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल हुआ है तो हमें मानना होगा ये कि हालत रफा में, बस इतना क्लियर कर ले बस, ठीक है। और अगर ये खबर की जगह पे इस्तेमाल होता तो दुनिया इस्तेमाल होता सिर्फ, और कुछ भी नहीं होता तो हमें समझ में आता तब भी ये। अगर ये दुनिया इजाफी की जगह पे, मुरक्कब इजाफी की जगह पे इस्तेमाल होता और मुजाफ इले की जगह पे होता तो हमें मानना होता कि ये हालत जर में है। तो दुनिया कोई पेश हरफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको हरकत नजर नहीं आ रहे, लिहाजा हमने मुब्तदा की जगह पे इस्तेमाल किया, हमने मारिफा हालत रफा के अंदर मान लिया हमने। तो हमने पढ़ा देखा, अच्छा दुनिया सिजनु, अच्छा ये दुनिया हमारा मुब्तदा बन गया। सिजनुल मोमिनी, सिजन कहते हैं जेल को, मोमिन के लिए मोमिन का जेल है। तो हमने नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी, दुनिया सिजनुल मोमिनी, यानी मोमिन का जेल है दुनिया। वजन्नतुल काफिरी, और काफिर का जन्नत है। तो हमने देखा कि मुब्तदा हमारा नॉर्मल मुफरद आया और खबर हमारा दो मुरक्कब इजाफी बनकर आ रहा। तो हमने देखा दो मुरक्कब इजाफी बनकर के हमारा खबर आ रहा है और दुनिया मुफरद बनकर आ रहा है। ये हदीस भी लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर हदीस है। आज इसका आपको एनालाइज कर पा रहे कि किस लिए दुनिया के ऊपर ऐसा क्यों, सिजनों के ऊपर पेश क्यों था, मोमिनी के नीन नून के ऊपर जेर क्यों था, मोमिन के ऊपर अलिफ लाम क्यों लगा हुआ था भाई, जन्नत के ऊपर पेश क्यों था और काफिर के नीचे जेर क्यों था। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी वजह क्या थी।
अरब क्यों इस्तेमाल करता था इसको। एक आखिरी में मिसाल देता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह इख्तिताम करता हूँ क्लास को। एक मिसाल जो कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ है, बहुत प्यारा एक जुमला है जो कुरान की आयत है, वो है अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तेमाल करता है अल हयातु, हाँ यार लिखा ही नहीं रहा ये थोड़ा, अल हयातु दुनिया अल हयातु दुनिया लाइबुन, अल हयातु दुनिया लाइबुन, ये कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल हुआ, आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ गौर करने की बात है, देखिए यहाँ पे अलिफ लाम के साथ मुफरत तो आ रहा है, लेकिन फिर अलिफ लाम के साथ दुनिया भी आया हुआ है। तो अब हमें समझ में आ रहा, अच्छा हया अल हयातु दुनिया, ये मुरक्कब तौसीफी नजर आ रहा हमें, यानी अब यहाँ मुब्तदा जो हमारा है मुरक्कब तौसीफी बनकर आया। मुरक्कब तौसीफी जब हमारा बनकर आ रहा है, तो अब इसका तर्जुमा क्या होगा। तर्जुमा ये अगर हम ये करें कि दुनिया की जिंदगी, वो तो मुरक्कब इजाफी आ रहा, तब तो जवाब आना चाहिए हयातुद दुनिया आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अलिफ लाम के साथ आ रहा है, यानी मुरक्कब तौसीफी आ रहा, तो इसका तर्जुमा असल जो होगा दुनियावी जिंदगी। दुनियावी जिंदगी मुरक्कब तौसीफी बनकर आया, तो हमारे पास तर्जुमा आया। अगरचे हम उर्दू के मुहावरे में दुनिया की जिंदगी भी कर लेते, लेकिन असल जो इसका तर्जुमा होगा वो होगा दुनियावी जिंदगी। दुनियावी जिंदगी खेल है, दुनियावी जिंदगी खेल है, वो आगे जाकर आता है वल्लहबुन, तमाशा है। अल हयात दुनिया लाइबुन व लहबुन, ये कुरान में मुहावरा इस्तेमाल हुआ, बहुत दफा इस्तेमाल हुआ, और वो है कि हया दुनियावी जिंदगी खेल वो तमाशा है। फिर आगे जाकर अल्लाह फरमाता है वज़ीनतुन, और खूबसूरती है, वह ज़ीनतुन व तफाखुरुन, वह तफाखुरुन, और फख्र करने वाली चीज है। और फिर आगे फरमाया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वह तकासुरुन, वह तकासुरुन, और कसरत है, आगे बढ़ना, तकासुर कहते हैं कसरत करना, तकासुरुन फिल अमवाली व औलादी। कुरान मजीद के अंदर ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको क्लियर समझ में लगा, अल हयातु दुनिया दुनियावी जिंदगी खेल है, तमाशा है, और जीनत है, खूबसूरती है, व तफाखुरुन, और फख्र करना एक दूसरे के अंदर, व तकासुरु, और एक दूसरे से कसरत करना, किस चीज में, फिल अमवाली पैसों में, मालों के अंदर, व औलादी और औलाद के अंदर। तो यहाँ हमने आज यहीं पे करते हैं इंशाल्लाह, और जो हमारे पास एक जो मुरक्कब बचा हुआ है मुरक्कब जारी, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने देखा कि मुब्तदा और खबर की जगह पर हमने मुब्तदा की जगह पे मुरक्कब तौसीफी का भी इस्तेमाल किया, खबर की जगह पे भी मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल किया हमने। मुब्तदा की जगह पर इसमें इशारा इस्तेमाल हुआ, लेकिन खबर की जगह पर इसमें इशारा इस्तेमाल नहीं हुआ। मुरक्कब इशारी हमने इस्तेमाल किया, और मुरक्कब इशारी में हमने इस्तेमाल कर लिया, देखा कि हमने मुरक्कब इशारी मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हो रहा, खबर की जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके बाद मुरक्कब इजाफी हमने इस्तेमाल किया, और मुरक्कब इजाफी हमने देखा मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल हुआ और खबर की जगह पर भी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। फिर हमने आगे जाकर के देखा कि मुब्तदा
مرکب توصیفی بھی آ رہا ہے اور خبر مرکب اضافی آ رہا ہے، اور کہیں مرکب اضافی مبتدا بن کر آ رہا ہے تو کہیں مرکب توصیفی ہمارا خبر بن کر آ رہا ہے. تو یہ تھا ہمارا کل ملا کر کے ہم نے جو مرکب ناقصہ استعمال کیا تھا، ہم نے جو پڑھا تھا اس کو ہم نے مبتدا اور خبر کی جگہ پہ استعمال کیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کلاس جو ریکارڈنگ ہوا اس کو بار بار ریپیٹ کر کے ایک دو بار اور کلاس کرے تاکہ انشاءاللہ آپ کے ذہن کو اور کھلنے کی جگہ دے. اور جو کچھ نہ سمجھ میں بنداس میرے سے پوچھیں آپ، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بار بار پوچھیں، 10 بار پوچھیں، میں 10 بار بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ میں اختتام کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اسے ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوٰ ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.